Hello students, today we shall read the poem Dust of Snow written by Robert Frost. Before I proceed I would give the brief introduction of the poet Robert Frost. Robert Frost is an American poet. He actually writes simply but insightfully about common or ordinary experiences. His famous poems are Road Not Taken, Stopping by Woods on a Snowy Evening, Birches, Mending Walls. His poem The Road Not Taken is often read at a ceremony in the United States. So this poem is set in a scene where the poet is standing under a hemlock tree. He is in sad mood. Just then a crow happens to throw some dust on him, and his mood changes. This actually changes his mood, and he says that I had spent my day in waste, but after this incident the rest of the part of the day uh, was saved by me. So through this poem the poet wants to convey a message that the negative things can bring happiness or joy in our life. That's what this poem give the message. So let's start it. The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. जिस तरीके से एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी मुझ पे झड़का। सुक मीन्स वैसे सेक माने हिलाना होता है। सुक डाउन ऑन मी मुझ पे झिड़काया। द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो की वो जो बर्फ की धूल थी, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जिसमें सफ़ेद फूल लगते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इसने मेरे मूड को चेंज कर दिया, इसने मेरे दिल को बदल दिया। यानी जो पहले मैं जिस चिंता में था, जिस बुरे मूड में मैं था, उसने इसे बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और उसने मेरे उस दिन के हिस्से को व्यर्थ होने से, खराब होने से बचा लिया, जिससे मैं पश्चाताप से भरा हुआ था। आई हैड रूड, रूड का मतलब होता है पश्चाताप से भरना या शोक करना भी कह सकते हैं हम। तो छोटी सी पोइम है बेटा ये, लेकिन इसके अंदर बात बड़ी गहरी है। एक्चुअली थ्रू दिस पोइम द पोइट वांट्स टू कन्वे मैसेज दैट वी कैन गेट हैप्पीनेस और जॉय फ्रॉम द नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स, नेगेटिव थिंग्स। दैट्स व्हाट द पोइट गेट। एक्चुअली hemlock tree and crow both are considered to be negative things. But these things became yeah, a reason of change his mood. Before this incident, the poet was in sad mood, but after that, after the falling of the dust of snow, the poet's mood is changed. And so we can say that this poem gives a very important message. So actually, if we talk about the literary devices, so we find alliteration, assonance, and first we talk about the rhyme scheme. Rhyme scheme, uh, let's check the rhyme scheme. So in the very first line, the way crow, we represent it A. Then in the second line, soak down on me. Me, we actually use a different letter for this. Me, B. The dust of snow. Actually, when we check it, we find that crow or snow both match. So we represent it the letter A. And then from a hemlock tree, me, it is represented with the same letter as it was represented in the second line, B. In the second stanza, इसमें देखते हैं हम, हैज़ गिवन माई हार्ट, हार्ट, सो इट डज नॉट मैच एनी ऑफ देम। सो इसको हम डिफरेंट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए चेंज ऑफ मूड, मूड भी किसी से मैच नहीं करता, तो इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सेव्ड सम पार्ट, हार्ट पार्ट ये मैच करते हैं, सो वी अगेन रिप्रेजेंट इट विद द सेम लेटर सी। एंड ऑफ ए डे आई हैड रूड, रूड मूड से मिलता है, तो वी विल रिप्रेजेंट इट द लेटर D. So that's what we have the rhyme scheme for this poem.
A B A B C D C D. Let's talk about other figure of speech in this poem. So look at this line, has given my heart, has given my heart. Actually, this is the alliteration that we find in this line. Alliteration is a figure of speech when we find the similar letter or similar sound at the beginning of letter that are close together. So it don't have to be right next to वन अनदर. ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि ये बिल्कुल ही इसके साथ में हो बेटा, लेकिन सेम लेटर है तो भी ये यहाँ पे एलिट्रेशन है. और इस लाइन में भी हम देखते हैं सेकंड स्टेंजा के, यहाँ पे भी आप एलिट्रेशन पाते हो. तो यहाँ पे आप एक तो राइम स्कीम जैसे मैंने बताया कि ए बी सी डी है. और फिगर ऑफ स्पीच की मैं बात करूँ, पोइटिक डिवाइसेस की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पे आप एलिट्रेशन पाओगे इस लाइन में, और इस लाइन में भी आप एलिट्रेशन है, जो काफ़ी आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ भी ऐसा है और यहाँ भी ऐसा है. तो हाँ, ये बात ज़रूरी नहीं होती कि ये बिल्कुल इसके क्लोज में इसके साथ वाला ही हो. इट डोंट हैव टू बी राइट नेक्स्ट टू द लाइन या टू द वर्ड. तो ये ज़रूरी नहीं होता, इसका ध्यान रखना. लेकिन सेम लेटर सेम साउंड, इस पे आपने ध्यान देना है. और दूसरी अगर मैं बात करूँ, इसमें एक एंजामेंट का भी प्रयोग किया गया. एंजामेंट अगर आप समझें तो जो सारी पोइम है, होल पोइम हैज़ बीन रिटन इन एंजामेंट. इट मीन्स देयर इज़ नो यूज़ ऑफ पंचुएशन मार्क. तो कोई पंचुएशन मार्क है ही नहीं. द वे क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड. तो यानी ये पूरी जो पोइम एक ही सेंटेंस में लिख दी गई है. सो देर इज़ नो यूज ऑफ पंचुएशन. सो वी कैन से दैट देर इज़ अनदर फिगर ऑफ स्पीच दैट इज एंजामेंट. एंजामेंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंजामेंट. जब कोई पंचुएशन मार्क ना हो और द सेंटेंस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ पंचुएशन मार्क, इसको हम एंजामेंट कहते हैं. अब अगर मैं एक और फिगर ऑफ स्पीच की बात करूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पोइट्री में, वो होता है आपका एजोनेंस. तो वो एजोनेंस जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे इसमें सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन ऑन मी. यहाँ पे जो ये वर्ड है इसमें आप वावल साउंड देख रहे हो. तो वावल साउंड में जो है आपका एजोनेंस होता है, एजोनेंस. तो ये जो है आपका एजोनेंस होता है. और इसमें एलिट्रेशन में और एजोनेंस में ये अंतर ये है कि इसमें आप द प्रोमिनेंस ऑफ वावल साउंड होती है. यानी वावल साउंड अगर रिपीटिशन हो रही है, ये कई बार आपका डिफ्थोंग में भी हो जाता है. और डिफ्थोंग में इसमें डबल वावल होते हैं लेकिन वो काम एक वावल का ही कर रहे हैं, तो उस सेंस में भी आप आते हैं. तो ये बेटा आपने इसमें पोइटिक डिवाइसेस को देखा. अब इसकी जो समरी है आप अपनी नोटबुक में फिर या रफ नोटबुक में आपने इसको उतारना है. तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा है. सो थैंक यू, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू.